Good morning, students. Up to last class, we have discussed the importance of water for human beings as well as in the plants. Now, today we will discuss sources of water. Sources of water. If we discuss about this topic, then we will see there is a lot of water available on the earth. About 3/4 part of the earth covered with the water. So earth is known as blue planet. Earth is also known as blue planet. From the space, if you see on the earth, it is blue in color. That's why it is known as blue planet. Got it? बच्चों, but all the water is not usable to us. You know, about 97.5% water is saline. Saline water, you can say it is the salty water. Salty water. And this water occur in the form of oceans and seas. This water occurs in the form of oceans and seas. ठीक है? This water is not usable, fit for human consumption. Why? Because it consists too much salt. It can't be used for drinking purposes. It can't be used for irrigation for plants. So, a person, that is the H.T. Coleridge, and H.T. Coleridge called it water everywhere, but no drop of water to drink. Right? So this is the number one source of water, ocean and seas. Second, some of the water. Now second water is the fresh. Second is the fresh water. And fresh water, the water which contains a small amount of the dissolved salts. A small amount of the dissolved salts. So this water is fit for human consumption. But before consume this water, we need to remove impurities, because a lot of impurities suspended in the water. You know well, मिट्टी, सैंड, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर सस्पेंडेड कंडीशन में रहते हैं. तो रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, रिमूवल ऑफ दी डिजोल्ड इंप्योरिटीज, सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स यहाँ पर बहुत सारे डिजोल्ड है, उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, रिमूवल ऑफ जर्म्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस. तो बच्चों, द फ्रेश वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. वी यूज दिस वाटर. अब तुम लोग कहोगे सर 2.5% वाटर इज फ्रेश वाटर. यस, इट इज फ्रेश वाटर, बट मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स. सो 1.5% water is stored in the form of glaciers, deposited in the form of glaciers, ice caps, snow on the mountains. Rest only 1% water is available to us, and this 1% water occur in the fresh water sources. What are the fresh water sources? Rivers,
rivers, stream, rivers, streams, ponds, rivers, streams, ponds, lakes. These are the fresh water sources. Now, next water source, main source of the water for us is the rainwater. Next source of water is the rainwater. Rain is the main source of the water, fresh water to us. बच्चों, this rainwater is the purest form of the water. Rainwater is the purest form of the water. Why it is called as purest form of the water? Because it do not contain any dissolved impurities. इसके अंदर कोई भी dissolved impurities नहीं होती. It does not contain any dissolved impurity. कोई भी इसके अंदर dissolved impurity नहीं होती. Due to lack of dissolved impurities, this water is the best water, purest form of the water. लेकिन क्या होगा बच्चों? You know well, nowadays there is too much pollution, air pollution. अब ये इतना एयर पोल्यूशन है तो ये स्मोक जा रहा है कहां? एयर के अंदर. पोल्यूटेंट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहां गए? सल्फर डाइऑक्साइड कहां गई? अल्टीमेटली द ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन they react with the rain water and causes acidic rain. तो बच्चों, acidic rain, what is the basic reason of the acid rain? Acid rain, the oxides of nitrogen and oxides of sulfur. When they react with the rainwater, they produce acidic rain. जो रेन होती है, रेन पानी में ही क्या हो जाएगा? एसिड डिसॉल्व हो जाएगा, एसिड फॉर्म हो जाएगा. In this way. Now after rainwater, next source of the water is the groundwater. Next source of water is the groundwater. You know well, as the rain comes to us, rainwater fall on the earth's surface. Most of the water run away into the sea, into the rivers, lakes, ponds, बहा करके चला जाएगा. Run off water. Some of the water percolate, infiltrate from the different layer of the soil. इन soil के different layers होता हुआ नीचे चला जाता है. It is deposited under the ground. That's why this water known as groundwater. The water which is deposited under the ground known as groundwater. The groundwater form a layer. The uppermost layer of the groundwater is known as water table. The uppermost layer of the groundwater is known as water table. इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वाटर टेबल. जहां पर ज्यादा पर्कोलेशन होगा तो वहां वाटर टेबल ऊपर रहेगा, राइट. और जहां पर पर्कोलेशन ऑफ वाटर कम होगा, सूखा पड़ गया, बरसात नहीं हुई, तो ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज नहीं होगा. तो जब बरसात होती है तो क्या होता है बच्चों? ड्यूरिंग रेन ग्राउंड वाटर लेवल गेट रिचार्ज्ड.
ground water level get recharged, and this ground water is used by the whales, ट्यूब वेल्स, हम लोग ट्यूब वेल लगा देते हैं, वेल्स लगा देते हैं, इस ग्राउंड वाटर को हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों. बट व्हाट इज दी बेसिक प्रॉब्लम, डेंजर, थ्रेट, एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. जितना रेप्लेनिश नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा हम लोग वाटर को यूज कर लेते हैं. दैट इज द बेसिक रीजन. प्रताप नगर साइड में देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द ट्यूबवेल्स जो हैं वो सबके सब खराब है. क्यों? ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया. ग्राउंड वाटर लेवल गो सो डीप एट सम प्लेसेस. बच्चों जैसे हमारे यहां पर हम कद है, किले के ऊपर की बात कर ले, ऊपर से एकदम से पानी, बरसात होती, अच्छी बरसात होती, रेनी सीजन, यू नो वेल, तो किले के ऊपर पानी स्टोर हो जाता है. स्टोर हो गया, गौमुखी के वहां पर पद्मिनी महल के पीछे पूरा पानी स्टोर हो गया, कालका देवी टेम्पल के सामने. नाउ दिस वाटर, अब ये ऊपर का वाटर लेवल है, कुछ पोर्शन नीचे आ जाता है एकदम से. जब नीचे का, जब जमीन थोड़ी नीचे आ जाती है तो फिर क्या होता है, ग्राउंड वाटर कम आउट. एट सम प्लेसेस ग्राउंड वाटर कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस, एंड सच काइंड ऑफ प्लेसेस आर नोन एज स्प्रिंग्स. इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्प्रिंग्स. वाटरफॉल, स्प्रिंग, तो यहां पर झरने बन जाते हैं. और यू नो वेल, स्प्रिंग वाटर इज ऑल्सो नोन एज मिनरल वाटर. स्प्रिंग वाटर को हम लोग एक्चुअल में मिनरल वाटर कहते हैं. अब एक बात और समझें, द ग्राउंड वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल द सस्पेंडेड इंप्योरिटीज. ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड इंप्योरिटीज तो नहीं है, लेकिन और ग्राउंड वाटर डिफरेंट लेयर से होता हुआ पास हुआ है, तो इट इज फ्री फ्रॉम अदर इंप्योरिटीज. बट ग्राउंड वाटर ऑल्सो हैविंग सर्टेन डिजोल्ड इंप्योरिटीज. जो वो ग्राउंड वाटर के अंदर बहुत सारी डिजोल्ड इंप्योरिटीज होती हैं, डिजोल्ड सॉल्ट्स होते हैं. तो ग्राउंड वाटर ऑल्सो हैविंग डिजोल्ड इंप्योरिटीज. इट इज फ्री फ्रॉम जर्म्स, नो डाउट, बट इट कंसिस्ट डिजोल्ड इंप्योरिटीज. और बच्चों इस ग्राउंड वाटर में डिजोल्ड इंप्योरिटीज की वजह से तो क्या होता है, हमारे चित्तौड़ वाले लोग जो पानी डायरेक्ट पी लेते हैं, दे सफर फ्रॉम दी किडनी स्टोन, किडनी डिजीजेज. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू दीज डिजोल्ड इंप्योरिटीज. ठीक है. अब तो हमारे पास में सोर्सेज ऑफ वाटर कौन कौन से हुए. नंबर 1 ओशन एंड सीज, सॉल्टी वाटर है लेकिन सोर्सेज तो है. सेकंड, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स. सच काइंड ऑफ वाटर कंसिस्ट, rivers, lakes, we can't use directly because it consists a number of germs, a number of salts. So we need to remove such kind of the impurities. Next one, rain water. It consists impurities of the air pollution like smoke, acid rain. Groundwater, it is free from the suspended impurities, free from the germs, but it also consists dissolved impurities. Got it? Now look, scarcity of water. बच्चों हमारे यहां पर वो पानी की कमी क्यों है? What is scarcity? पानी की कमी. Most of the water occurs in the seas and oceans, which is salty water, saline water. Due to it is most of the water is the saline water, we can't use this water for our use. Second, most of the fresh water, as we have discussed, most of the fresh water, 1.5% about, stored frozen in the form of mountains,
glaciers. So most of the water deposited in the glaciers and glaciers and ice caps. This water is also not available to us. Next one, there is uneven distribution of the water. Uneven distribution of water. Uneven distribution of water. कहीं पर तो बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है और कहीं पर बरसात ही नहीं होती. ड्यू टू दिस आर राजस्थान सफर फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी. वेस्ट बंगाल, बिहार, दे जनरली सफर फ्रॉम दी फ्लड एरिया, फ्लड रीजन्स. वहां पर खूब फ्लड होती है, हमारे यहां पर बरसात ही नहीं होती. हमारे यहां तो सूखा पड़ गया. राइट. नेक्स्ट वन, due to human interference. Due to human interference. Human interference. We cut down the trees. Deforestation. We cut down the trees at large scale. Interference. Deforestation. And overuse. And overuse of the resources. Overuse of the water resources, groundwater. It also cause the water scarcity. कुछ लोग तो बड़े मजे में 4-4 बार नहाते हैं, शावर से नहाएंगे आधे घंटे तक, और हमको बेचारों को पानी नहीं मिलता. राइट. वी नीड टू फेच अ बकेट ऑफ वाटर, बकेट फुल वाटर फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस. जब लोग छोटे थे तो सरकारी नल था, उस नल पर सवेरे 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे वहां पर जाकर लाइन लगानी पड़ती थी. तब जाकर के हम लोग घर का पानी भर पाते थे, नहाने के लिए, पीने के लिए. नेक्स्ट वन, वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन. A number of industries throw their garbage, throw their effluents directly into the water bodies, directly into the rivers. With it causes, it makes unfit this water, unfit for the human consumption and consumption for the animals. बेचारे एनिमल्स अगर ऐसे पानी को पिएंगे तो they will die. एक्सरेड एग्जाम्पल बताता हूं. हमारे थर्मल पावर प्लांट, वो थर्मल पावर प्लांट में गरम पानी को, थर्मल का जो गर्म पानी निकलता है उसको सीधा वो छोड़ देते हैं बाहर पानी में, रिवर कोटा डैम के अंदर. वहां से कोटा बैराज में छोड़ दिया. कोटा बैराज में सारा पानी जो रिवर, जो जहां पर वो जिस पोर्शन में, बाकी सब जगह कूल वाटर है, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर है, यहां पर गर्म पानी हो जाएगा. तो दी फिशेज दैट लिव इन सच काइंड ऑफ द प्लेसेस, दे विल डाई. तो बच्चों वहां पर बहुत सारी फिशेज जो होती थी ऐसे मरी हुई मिलती थी पहले. अब तो धीरे धीरे अवेयरनेस आई लोगों में. अब उसको बोला गया कि जब तक आपका पानी ठंडा नहीं होगा तब तक आप, यू कांट थ्रो दिस वाटर, पुट दिस वाटर डायरेक्टली इनटू दी रिवर. ठीक है बच्चों. दीज आर दी सम रीजन्स. Ocean and seas, most of the water occur in the ocean and seas, which is unfit for human consumption. पानी है लेकिन हमारे लिए नहीं है. आइस, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, ठीक है, उनसे हमारे रिवर्स निकलती हैं जब वो पानी मेल्ट होता रहता है तो. लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर पोल्स पर, पोलार रीजन्स पर, देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर. कहीं पर बरसात, कहीं पर सूखा. ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर and water pollution, it make the water scarcity problem more worst. गर्मी के टाइम पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अपने ये सिटी में ले लो, 3 दिन में एक बार पानी आता है, 2 दिन में पानी आता है, 3 दिन में पानी आता है. अभी का पता नहीं है. बाकी पहले तो 3 दिन में पानी देते थे म्यूनिसिपैलिटी का.